Hello everyone, welcome back. Today we are looking into the question from the May 2024 CA Intermediate Cost and Management Accounting RTP. As you all know, the syllabus has changed. So it's very important for you to go through all the questions of RTP along with the case-based MCQs that has been given in the beginning of the RTP. Today we are doing specifically one question number 12 of budget and budgetary control from the RTP of May 2024. It's a very good question. There are many calculations involved in the question. So I'll try to explain all the calculation and I'll try to make it simple. Okay. So without wasting any time, let us get into the question. This is in page number 15. M Limited is a public sector undertaking, produces a product A. The company is in process of preparing its revenue budget for the year 2024. Okay, हमको revenue budget बनाना है. Revenue budget means incomes, expense, profits, सब उसमें दिखना चाहिए. Company has the following information which can be useful in preparing the budget. That means कुछ basic data दिया हुआ है जिसकी मदद से हमको budget बनाना है. It has anticipated 12% growth in sales volume from the year 2023 of 4,20,000 tons. That means last year we are preparing budget for 24, right? 23 का प्रोडक्शन दिया हुआ है कि हमने ना प्रोड्यूस करके सेल किया 4,20,000 tons. And in the current year we are going to increase by how much percent? 12%. So simple. That is your start of the question, right? You always need how many units produced and sold. उसके बगैर तो आपका बजट आप एस्टिमेट कर ही नहीं पाओगे. So last year का सेल्स दिया हुआ है. Of course क्या करेंगे? प्लस 12% करेंगे तो ऑलरेडी आपको जो है स्टार्ट मिल जाएगा. That will give you the current period's sales. Okay. सेल्स बोलिए, प्रोडक्शन बोलिए, इन्वेंट्री तो नहीं दिख रहा है कहीं पर भी. Sales price of ₹23,000 per ton will be increased by 10%. Last year का selling price 23,000 per ton था, वो 10% से increase होगा. But there is one condition attached to that, provided कब आपका सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज होगा? अगर आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 5%. कंडीशन अटैच्ड है, रिमेंबर. अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स 5% से इंक्रीज होता है, only then the selling price will increase by 10%. Sir, what if it doesn't happen? Doesn't happen, that means selling price will remain same. So आगे देखेंगे कहीं पर कुछ हिंट दिया हुआ है क्या, अकॉर्डिंगली हम कॉल लेंगे. तो एज ऑफ नाउ वी विल नॉट assume कि selling price increase हो ही रहा है. Okay. To produce 1 ton of product A, 2.3 tons of raw materials are required. ये तो हमने कई बार consumption budget में देखा हुआ है. Raw material cost is ₹4,500 per ton. The price of raw material will also increase by 10%. Material का price भी बढ़ेगा. कितने परसेंट से? 10% से. उसमें भी condition attached है. If WPI increases by 5%. Okay, selling price बढ़ेगा 10% से, मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा 10% से. अगर WPI 5% से इंक्रीज होता है तो प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन WPI फॉर 2024 इज 4%. बहुत बढ़िया. दैट मींस ये सिर्फ 4% से बढ़ रहा है. इंडेक्स प्राइस से 4% से बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस और मटेरियल का प्राइस बढ़ने वाला था अगर WPI 5% से बढ़ता तो. But WPI तो 4% से बढ़ रहा है. That means this information becomes irrelevant. Selling price 10% से बढ़ेगा, ये information irrelevant हो गया because वो active कब होता था? अगर wholesale price index 5% से बढ़ता था तो. That means in our current year also selling price is going to remain at 23,000 per ton. Very very simple. Similarly, raw material का cost भी 10% से कब बढ़ता था? अगर आपका WPI बढ़ता था तो 5% से, but WPI तो 4% से बढ़ रहा है. That means raw material cost will also remain same at 4,500 per ton. I hope you understand this. Very simple. Okay. So sentence का interpretation correctly करना. Conditional कुछ रहेगा तो कंडीशन अगर होता है तो ही प्राइस इंक्रीज आपको अप्लाई करना है. So यहाँ पर प्राइस इंक्रीज अप्लाई नहीं करना है. ठीक है. Total of 6,000 employees works for the company. The company works 26 days in a month. Total 6,000 employees है और 26 दिन का हमारा working month होता है. 85% of the employees of the company are permanent and getting salary as per 5-year wage agreement. 85% employees मतलब 6,000 के 85% जो कुछ भी बनता है
सॉल्व करते समय हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उतने लोग परमानेंट है। द अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन शिफ्ट? मीन्स 8 आवर का शिफ्ट, 8 आवर्स का मीन्स 1 डे का शिफ्ट मान सकते हो। सो 1 डे का सैलरी दिया हुआ है 3,000 रुपीज। ओके, द न्यू वेज एग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई। तो नया वेज एग्रीमेंट इंक्रीज इंप्लीमेंट होने वाला है, दैट मींस उनका वेजेस बढ़ने वाला है। कितने परसेंट से बढ़ने वाला है? 15% से बढ़ने। बट रिमेंबर, इंक्रीमेंट जो हो रहा है 1 जुलाई को हो रहा है। ओके, इस डेट का महत्व है, सॉल्व करते समय हम देखेंगे। सो व्हाट इज द समरी ऑफ पैराग्राफ नंबर 6? हमारे पास 6,000 एम्प्लॉइज है, उसमें से 85% एम्प्लॉइज परमानेंट वर्कर्स है। ठीक है, उनका एक दिन का पगार 3,000 रुपया है, और आने वाले साल में जुलाई 1 तारीख से उनका इंक्रीमेंट होने वाला है 15% से। ओके सर, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 15% एम्प्लॉय? रिमेनिंग 15% एम्प्लॉय जो है लोग कैजुअल वर्कर्स, दे आर नॉट अवर परमानेंट एम्प्लॉयज। उनको डेली वेजेस देते हैं हम लोग, एक दिन का 850 रुपीज। उनका जो वेज है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से अटैच्ड है, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह होगा तो उनका इंक्रीमेंट किया जाता है। प्रेजेंट सीपीआई कितना है? 165.17, एंड सीपीआई कितना होने वाला है आने वाले साल में? 173.5। इट मे लुक वेरी टेक्निकल, बट इट इज वेरी सिंपल। It's very simple. It is just like the cost inflation index that you do in capital gains. Okay. Last year ka wages was 850. Last year ka index was 165.17. Current year ka index is 173.59. Just like you do indexation in capital gains, 850 divided by last year's index multiplied by present year's index. That's it. आपको present wages मिल जाएगा. But remember, आपको per day wages मिला है. Okay. उसको फिर रिलेवेंट फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, विल डू दैट। पावर कॉस्ट पिछले साल 42 लाख रुपीस था, 7 लाख यूनिट्स का। ओके, 60% ऑफ द पावर हमने प्रोडक्शन के लिए यूज किया, और रिमेनिंग रिमेनिंग मीन्स 40% हमने एम्प्लॉयज के क्वार्टर्स के लिए, ऑफिस के लिए यूज किया। मतलब इट इज नॉट कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, द रिमेनिंग 40%। ओके, पिछले साल हमने 60 लाख रुपीस सेफ्टी एंड मेंटेनेंस के लिए भरा है। इस साल वो प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर हमने डीजल खरीदा था 1,20,000 कार में यूज करने के लिए। ओके, डीजल का कॉस्ट करंट ईयर में 15% से बढ़ने वाला है। ओके, पिछले साल हमने कार हायर पे लिया था, हायर पे मीन्स रेंट पे लिया हुआ था। डीजल हम भरते थे और रेंट भरते थे 6 लाख रुपीज। 24 में क्या डिसाइड हुआ है कि हम डीजल के कॉस्ट को भी रीइंबर्स करेंगे। किसको? विल रीइंबर्स द कॉस्ट टू द हायरिंग कंपनी, रेंटल कंपनी। मींस पिछले साल तक हम सिर्फ रेंट भरते थे कार का, डीजल हम खुद भरते थे। अब हम क्या करेंगे? रेंटल कंपनी को बोल देंगे, भाई ये लो कार का रेंट 6 लाख, और ये लो डीजल का प्राइस 1,20,000। सो डीजल तब भी कॉस्ट था, अब भी कॉस्ट है। ऑफ कोर्स इस साल इंक्रीज होके आएगा 15% से, बट प्रीवियसली वी यूज्ड टू पे, नाउ वी आर गिविंग टू द रेंटल कंपनी, नाउ दे विल पे। इससे क्या होगा? डूइंग दिस विल अट्रैक्ट 5% जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम तो पे कर रहे हैं, राइट? हम तो पे कर रहे हैं, हम सर्विस रिसिपिएंट है, और सर्विस रिसिपिएंट को जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो भरा जाता है, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और उस पर आपको इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स इट बिकम्स अ कॉस्ट। इन सिंपल वर्ड्स, 2024 में हमारा एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आने वाला है। रेंटल कंपनी को हम जितना भी पेमेंट करते हैं उसके ऊपर हमको एक एक्स्ट्रा जीएसटी कॉस्ट इनकर करना होगा। ओके, डेप्रिसिएशन पिछले साल का अमाउंट दिया हुआ है, और इस साल का डेप्रिसिएशन 15% लोअर होने का। ओके, यू बीइंग एन एसोसिएट टू द बजट कंट्रोलर ऑफ द कंपनी, prepare revenue या flexible budget for the year 2024 and also show the budgeted profit or loss for the year. Okay, so 2024 का बजट बनाना है हमको। हर एडजस्टमेंट में, हर इंफॉर्मेशन में देयर इज सम कैलकुलेशन इन्वॉल्व। आई विल टीच यू ऑल द कैलकुलेशन कि क्या बेसिक्स पे, क्या एजम्पशन पे ये कैलकुलेशन किया होगा। ओके, वही इस वीडियो का मेन पर्पस था कि काफी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था, सर इसमें क्या कैलकुलेशन किया है, हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सो दैट इज व्हाई आई एम trying to explain the calculation and the logic behind that and the reason behind that. So क्वेश्चन को तो समराइज कर लिया हमने, एक बार देख लेते हैं हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन।
Now, the solution is not asking you to prepare the budget for 23. It is asking you to prepare the budget only for 24. So 24 का कॉलम आपने बना लिया तो काम हो जाएगा. बट रेकमेंडेड ये है कि 23 का कॉलम बनाओगे, 23 का कॉलम बनाओगे तो इट विल मेक योर वर्क फॉर कैलकुलेशन लिटिल बिट इजियर. आप आसान तरीके से कैलकुलेट कर पाओ. सो रेकमेंडेड यही रहेगा. ऐसे केसेस में जब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन 23, भाई 23 का तो फिगर सामने आने दो, तो इंक्रीज डिक्रीज को आप इजीली अडेप्ट कर पाओगे. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर द कॉलम्स फॉर 23. 23 में क्या था वो पहले लिखेंगे, फिर क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उनका कहना है वो अप्लाई करेंगे, हमको 24 का फिगर मिलते जाएगा. ओके, one of the most important thing about this cost and management accounting subject is you should never jump into the solution straight away. solution में जाने से पहले एक बार देख लेने का what is the situation, how do we go about, because midway of the solution you will not be able to come back again. So एक blueprint आपके सामने रहना चाहिए, एक रास्ता सामने रहना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह वगैरह. ओके, what am I talking about? अगर आप ध्यान से देखोगे, यूनिट्स देखिए लाखों में है. लाखों में रहने से कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो करोड़ों का भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. बट उन केसेस में सेलिंग प्राइस वगैरह बहुत छोटा अमाउंट हुआ करता था. 10 रुपीज सेलिंग प्राइस, 12 रुपीज सेलिंग प्राइस, 15 रुपीज सेलिंग प्राइस. बट लुक एट द सेलिंग प्राइस हियर, 23,000. 23,000, isn't it? So you just imagine आपका कितना बड़ा अमाउंट आएगा सेल्स का. मल्टी क्रोर्स में आपका सेल्स का अमाउंट आएगा. सेल्स के बेस पे काफी चीजें हैं. सो ऐसे केस में यू हैव टू बी अलर्ट कि क्या मैं क्वेश्चन को जैसा दिया वैसे सॉल्व कर पाऊंगा. नो, बेटर रहेगा मैं इसको कन्वर्ट करूं. कन्वर्ट कैसे करूं तुम्हारे ऊपर है. थाउजेंड्स में करना है थाउजेंड्स में करो, लैक्स में करना है लैक्स में करो. सो मेक श्योर दैट यू चेक द फिगर्स दैट यू विल बी डेराइव. कैलकुलेट नहीं करना है बट एक अंदाज ले लेने का कि बड़े फिगर्स तो नहीं आ रहे, वेदर आई विल बी एबल टू राइट द एंटायर फिगर. सो कन्वर्ट कर लेने का. मिडवे अराउंड जाके आपको वापस आना पॉसिबल नहीं है. So plan your solution in advance before you jump into any solution. Not only applicable for this chapter, applicable for all the chapters. Okay. So हमारा conversion करके हम लिखेंगे and we will be doing in lakhs. Okay. In lakhs करेंगे. So इसलिए हम लोग टॉप में यहाँ पर लिख देंगे रुपीज in lakhs. So इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होगा. सिंपल हेडिंग फ्लेक्सिबल बजट करके दे दिया. और जैसे मैंने बताया 23, 24 क्यों हम दो कॉलम बना रहे हैं. 23 का फिगर आ गया तो 24 का कॉलम विल बी मोर इजियर फॉर अस. ओके सर, दैट इज हाउ विल गो. लेट्स सी. सबसे पहले भाई कितना यूनिट्स या फिर कितना टन्स हम लोग बेचने वाले आने वाले साल में. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बगैर तो आप बाकी के खर्चे का कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे. सो लास्ट ईयर कितना था, 4,20,000. सो आई विल राइट just a minute. या 4,20,000 है. सो उसके लिए हम लिखते समय लिखेंगे 4.2 lakhs. हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया कि भाई 8 lakhs. ओके, क्या हो रहा है अभी आने वाले साल में. योर प्रोडक्शन एंड सेल्स इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 12%. सो यू कैन डू समथिंग. 4.2 into 1.15. इसके कैलकुलेशन के बहुत तरीके हैं. 4.2 lakhs प्लस 15% करो चलेगा, इंटू 115% करो चलेगा. 15% है, सॉरी 12%. 4.2 lakhs was last year production. Current year में the production is going to increase by 12%. Okay, so you can write 4.2 into what you call as 112%. You can write plus 12%. मैं यहाँ पर इंटू 1.12 कर रहा हूँ. ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप सबको ये पता है. इट्स अप टू यू, आप उसको कैसा अचीव करना चाहते हैं. आने वाले साल में 4,70,400 इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्शन. उसी को हमने 4.704 करके लिखा है. ओके, टॉकिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस पर टन. सेलिंग प्राइस पर टन, ये देखिए सेलिंग प्राइस पर टन. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर टन? 23,000. इसको कन्वर्ट नहीं करना, ये पर यूनिट है. सर आपने बाजू के कॉलम में भी 23,000 लिखा सर, 10% क्यों नहीं बढ़ाया? 10% क्यों नहीं बढ़ाया इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं.
10% इंक्रीज तभी होता अगर WPI 5% से इंक्रीज होता, लेकिन WPI तो 4% से इंक्रीज हुआ है। सो आपका सेलिंग प्राइस अभी भी क्या रहेगा, 23,000। ओके, एंड हियर वी गो, हमें मिलेगा सेल्स, हमें मिलेगा सेल्स, व्हाट इज दैट, टन्स इनटू सेलिंग प्राइस पर टन। सो ये दोनों फिगर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं और हम पहुंच गए हमारे सेल्स की तरफ। ये है हमारा सेल्स, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं और इसको नाम दे देता हूं ए। फाइन सर, खर्चों की तरफ बढ़े, अभी खर्चे की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। पहला खर्चा देखिए, पहला खर्चा क्या दिख रहा है, मटेरियल। सो मटेरियल्स का कॉस्ट, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कितना टन्स मटेरियल हमने, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम किया। सो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इन टन्स, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्स व्हाट, 2.3। So it's very very simple. It is units produced into 2.3. तो just calculation बता देंगे तो अच्छा रहेगा। So this multiplied by 2.3, ये आपका यूनिट्स है, राइट, ये आपका यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड है, एंड एवरी यूनिट रिक्वायर्स 2.3। सो 2.3, ओके। जितना डेसिमल्स ले सकते हो उतना ले सकते हो, 2 लिखना है 2 लिखना है, 4 लिखना है 4 भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल का प्राइस, रॉ मटेरियल्स प्राइस पर टन दिया है क्या सर, यस दिया है। लास्ट ईयर कितना था, 4,500, अब कितना होने वाला है, 4,500 ही रहेगा। 10% इंक्रीज होता था अगर WPI 5% से इंक्रीज, 4,500। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किया मैंने, मटेरियल्स का रुपीज निकाला। मटेरियल्स का रुपीज कैसे निकाला, मटेरियल्स का रुपीज इज टन्स इनटू 4,500 मेरा प्राइस है, और इसी के साथ मेरा पहला खर्चा मुझको मिल गया, इसको मैं नाम दूंगा बी। ओके, आई होप इट्स गोइंग इजी। चलते अगले खर्चे की तरफ। अगला खर्चा मेरे वर्कर्स लोगों का है, तो एडजस्टमेंट नंबर 5, 6, 7 साथ में पढ़ के मुझे वेजेस का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, सो लेबर कॉस्ट बोलो, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलो, वेजेस कॉस्ट बोलो, व्हाटएवर, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मेरे परमानेंट वर्कर्स, भाई कितने वर्कर्स हैं मेरे पास, परमानेंट वर्कर्स कितने हैं मेरे पास, टोटल वर्कर्स 6,000 वर्कर्स हैं। ओके, कितने वर्कर्स परमानेंट है, 85%। सो वी विल गेट 6,000 का 85%, दैट इज 5,100 वर्कर्स। ऑलराइट एवरीवन, सिंपल, 5,100 वर्कर्स। इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं ताकि आपको इजी लगे। फाइन सर, एक वर्कर का एक दिन का पगार 3,000 रुपया था पिछले साल। सो मेरा कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, दैट्स वाई मैंने ये कॉलम थोड़ा ब्रॉड रखा है ताकि आप देख के समझ सको हाउ एग्जैक्टली कैलकुलेशंस आर डन। या सी, 5,100 वर्कर्स इनटू एक वर्कर का एक दिन का पगार 3,000 रुपया, ऐसे 26 दिन काम करते हैं। ओके, ये क्या हो गया, एक महीने का आ गया, राइट। 3,000 इज पर डे, 5,100 वर्कर्स इंटू 3,000 पर डे इंटू 26 डेज इंटू 12 मंथ्स, राइट, पूरे साल का। तो 5,100 इंटू 3,000 इंटू 26 इंटू 12, बट बी केयरफुल, दैट विल गिव यू द होल फिगर। डू नॉट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 1 लाख, बिकॉज हमारा आंसर 1 लाख लैक्स में लिख रहे हैं हम लोग, सो इट हैज टू बी रिटन समथिंग लाइक दिस। फाइन सर, या now 2024 be careful, 2024 में ना उनका 2 हिस्सों में आपको सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जुलाई 1 तारीख से इंक्रीमेंट है, जुलाई 1 तारीख से इंक्रीमेंट है, तो एक दिन का पगार चेंज होने वाला। एक बार मैं रफ में कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितने परसेंट से बढ़ने वाला है एक दिन का पगार, 15% से। तो क्या ना, इसे इट विल बी 3,000 इंटू 1.15। सो एक दिन का पगार कितना हो जाएगा, 3,450। सॉल्यूशन में वगैरह 3,450 डायरेक्टली भले दिया, आप समझ सकते हो कि पहले 3,000 था, नाउ द सैलरी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 15%। तो 3,000 को मैंने प्लस 15% किया, या फिर इंटू 1.15 किया, या फिर इंटू 115% किया, इट्स गोइंग टू बी सेम।
ओके, मतलब पहले 6 महीने जुना पगार ही चल रहा था 3000, एंड 3450 जो अब हमने कैलकुलेट किया वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में चलेगा. ओके, सो सी द कैलकुलेशन, सी द कैलकुलेशन. ओके, कैलकुलेशन देखिए, यहां पर सीधा सीधा आ गया वेजेस. यहाँ पर 2024 के लिए फर्स्ट 6 मंथ्स का कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके से कर रहा हूं. यहीं पर कर लेता हूँ कैलकुलेशन. कितने वर्कर्स है? 5100. क्या पगार है? 3000. कितना दिन? 24 दिन. इंटू 6 मंथ्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. इंटू 6 मंथ्स, बिकॉज जुना पगार 6 महीने के लिए चल रहा है. जनवरी टू जून, जुलाई 1 से तो इंक्रीमेंट होने वाला. सो इट इज गोइंग टू बी 5100 into 3000 into 26 into 6. Do not forget to divide by 1. Okay, then second half, next 6 months. नेक्स्ट 6 मंथ्स में वर्कर्स तो उतने ही थे, बट पगार 3450 हो गया. ये देखिए, राइट. इंटू 26 दिन इंटू 6 महीने, यहां पर आ जाएगा डिवाइड बाय 1 लाख. भूलना नहीं है हर कदम पे. ओके, एंड ये हो गए मेरे परमानेंट वर्कर्स. अब कौन? अब मेरे कैजुअल वर्कर्स. भाई कैजुअल वर्कर्स कितने लोग हैं? दो ऑप्शन है. 6000 में से 5100 को हटा दो, या फिर 6000 का 15% निकालो. इजी. सो दैट विल बी 900 वर्कर्स, राइट. 900 वर्कर्स. लास्ट ईयर का पगार निकाल लेते, वो तो सिंपल है. डेली वेजेस, एक दिन का पगार 850 रुपये है. तो कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ. शो द कैलकुलेशन हियर. 900 वर्कर्स, एक दिन का 850. ओके, फाइन. मल्टीप्लाइड बाय 26 days, multiplied by 12 months. Yeah. So 900 into 850 into 26 into 12. Do not forget, once again, divide by 1 lakh. Okay, sir. ये हो गया आपका कैजुअल वर्कर्स का लास्ट ईयर का पगार. सर करंट ईयर का कैसे निकालेंगे? करंट ईयर का 2024 का डेली वेजेस पहला कैलकुलेट कर लेते हैं. डेली वेजेस ऑफ 2024 लास्ट ईयर का कितना था? 850. व्हाट वाज लास्ट ईयर का इंडेक्स? व्हाट वाज लास्ट ईयर का इंडेक्स? 165.17 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज करंट ईयर का इंडेक्स? 173.59. या ये देखिए 173.59. सो 850 डिवाइड बाय 165.17 into 173.59. इंडेक्स आ गया. आप उसको 2 डेसिमल तक रख सकते हो. 893.33 पर डे. ये एक दिन का पगार है. दिस इज एक दिन का. अब जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया, यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कितने वर्कर्स है? सेम कैलकुलेशन फंडा है. देखो सेम कैलकुलेशन. 900 वर्कर्स, बट द रेट पर डे हैज बिकम 893.33 into 26 days into 12 months. Yeah, 900 into 893.33 into 26 into 12 divided by 1 lakh, of course. So you can take up to 2 decimals, you can take up to 3 decimal, you can take up to 4 decimal. There is no harm in it. लेकिन मेन आंसर को आप 2 डेसिमल तक रखोगे तो चल जाएगा. पर यूनिट को, पर आवर को अगर आप 3-4 डेसिमल तक रख सकते. सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यू कैन टेक योर कॉल. मिनिमम 2, उससे कम नहीं रखना है. बट दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, कैजुअल वर्कर्स का और परमानेंट वर्कर्स का, एंड दैट विल गिव मी द वेजेस का खर्चा. और ये हो गया मेरा खर्चा नंबर 2. ये हो गया मेरा खर्चा नंबर 2. मैं इसको नाम दूंगा सी. ओके सर, इजी. चलिए अगला खर्चा क्या है? तो 5, 6, 7 तीनों हो गए हमारे. अगला खर्चा पावर का है. ठीक है, पावर दो पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है. सबसे पहले प्रोडक्शन का पावर. टोटल पावर कॉस्ट कितना था? 42 lakhs. आप स्ट्रेट अवे जा सकते हैं. बाय द वे 42 lakhs को मैं 42 लिखता हूँ, चाहो तो एल लिख लेता हूँ ताकि आपको समझे कि मैंने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली. 42 into 60% इज फॉर पावर. तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ
डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 42 इंटू 60%, 42 इंटू 60%, 25.2। ओके, अदर, अदर का क्या रहेगा? ऑफ कोर्स 42 lakhs इंटू 40%। अदर बोलो, ऑफिस बोलो, या देखो क्वार्टर्स बोलो, जो बोलना है बोलो। ओके सर, 42 lakhs into 40% will be 16.2, will be 16.2। तो लास्ट ईयर का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इस साल क्या हुआ, ध्यान में रहे, पावर का कॉस्ट भले नहीं बढ़ रहा है, कहीं पर पावर का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है क्या? देखिए, पावर कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, फाइन। बट जहां तक ये अदर का सवाल है, इट विल स्टिल रिमेन एट 16.8। भाई सर, वेरी सिंपल, ये कहां पर यूज हुआ है? ये स्टाफ क्वार्टर्स में और ऑफिस में यूज हुआ है। प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारा स्टाफ क्वार्टर्स का पावर का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, दैट विल रिमेन सेम। हाँ, प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ता तो वो बढ़ा देते थे, बट प्राइस भी बढ़ते हो कहीं पे नहीं दिख रहा है। बट दिस कांट बी केप्ट एज सेम, इसको सेम नहीं रख सकते। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दिस इज द पावर यूज फॉर प्रोडक्शन। करंट ईयर का प्रोडक्शन हमारा 12% से बढ़ा है कि नहीं? यस। तो ऑफ कोर्स ये भी प्योरली वेरिएबल कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन रिलेटेड है, सो इट विल आल्सो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज। सो व्हाट वी विल डू, 25.12 multiplied by 1.12, or you can also do plus 12%, or you can do, or you call as plus, या फिर into 112%, whatever you want to do, but 12% से बढ़ाना बहुत 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 जरूरी था। ओके, सो ये 2023 का है। 2024 का मैं यहीं पर कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझे कि आया कहां से। 25.2, whatever you want, you can write plus 12%, or you can write the other three options that I have told you. Okay, that is the most crucial part of the क्वेश्चन, जो बच्चों को याद नहीं आता, बिकॉज क्वेश्चन में चेंज नहीं बोला है तो सेम का सेम ले लेते हैं, बट ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके सर, सो पावर कॉस्ट इजीली डन। इसका भी टोटल ले लेते हैं, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते जाइए, दैट्स इट, और कुछ। सर लास्ट ईयर का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, तो हमने ब्रेकअप क्यों किया? ब्रेकअप नहीं किया होता तो आप ये फिगर को कैसे बढ़ाते हैं ना, तो इसलिए ब्रेक करके लिखा है। ओके सर, सो पावर कॉस्ट इज डी। व्हाट इज आवर नेक्स्ट एक्सपेंस? आवर नेक्स्ट एक्सपेंस इज सेफ्टी एंड मेंटेनेंस। द अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। एटलीस्ट इधर याद दिला दिया आपको, तो वही हमने ऊपर पावर में भी अप्लाई किया। सो द नेक्स्ट कॉस्ट इज सेफ्टी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। व्हाट वाज लास्ट ईयर का फिगर? 60 lakhs। मैं लिखते समय क्या लिखूं? 60। अब क्या हो रहा है? 60 plus 12%, whatever you want to write, you can write 60 plus 12%. I prefer to write into 1.12. Yeah, so you'll get 67.2, 67.2 आ गया। एंड आपका सेफ्टी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक कॉस्ट है, उसको भी आप नाम दे देंगे ई, और इसको मैं करता हूं क्लोज। फाइन, व्हाट नेक्स्ट? हम लोग क्या पे कर रहे थे? डीजल का कॉस्ट पे कर रहे थे। लास्ट ईयर डीजल का कॉस्ट अपना खुद का कॉस्ट था। सो डीजल कॉस्ट, हाउ मच वाज द डीजल कॉस्ट लास्ट ईयर? 1,20,000। या 2023 में वी पेड 1,20,000, सो आई विल राइट व्हाट, 1.2। इस साल डीजल का कॉस्ट हमको नहीं पे करना है, हम उनको पे करेंगे। किनको? हायर चार्जेस वालों को। तो हायर चार्जेस के लिस्ट में हम उसको लिखेंगे। डीजल का कॉस्ट होगा बट हायर चार्जेस के लिस्ट में लिखेंगे, बिकॉज उस पर आरसीएम पे जीएसटी भी आने वाला है। सो डीजल का कॉस्ट यहाँ पर ही मैं टर्मिनेट करता हूँ एज फार एज लास्ट ईयर का कंसेप्ट। कॉस्ट को मैं नंबर देते जाता हूँ। कॉस्ट का नाम हो गया मेरा एफ कॉस्ट। ओके, व्हाट नेक्स्ट इज द नेक्स्ट? ये आ गया आपका हायर चार्जेस, कार हायर चार्जेस टू रेंटल कंपनी। फाइन, हायर चार्जेस पहले था, अभी भी है। व्हाट वाज द हायर चार्जेस लास्ट ईयर? 6 लाख। इंक्रीज हो रहा है क्या सर? कहीं पे इंक्रीज हो रहा है क्या? इंक्रीज हो रहा है क्या? देखिए, कहीं पर भी उन्होंने इंक्रीज नहीं बोला है, तो वो तो अभी भी 6 लाख रहेगा। और अब हमको डीजल कॉस्ट पे करना है। लास्ट ईयर हमारा खर्चा था, अब हम उनको पे करेंगे। खर्चा तो है, लेकिन यहाँ पर लिखना ज्यादा बेटर रहेगा।
नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, थोड़ी देर में समझेगा आपको। अच्छा, लास्ट ईयर का भी डीजल कॉस्ट 1.2 था, इस साल का भी 1.2 है, बट डीजल का कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 15%, सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दैट। ओके सर, हाउ डू वी go something like this. 1.2 was the diesel cost. It is going to increase by plus 15%, or you can do into 1.15, whatever you want to do. So diesel का cost 1.38 हो गया. Okay. Now, what is the total of higher charges? वो हम लोग देखेंगे. पहले 6 था, अभी 6.6 plus 1.38, 7.38 हो गया. अब हमको जीएसटी लगेगा. इस पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज लास्ट ईयर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था. जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? अगर तुम डीजल का कॉस्ट रीइंबर्स करोगे. ओके, सो डीजल का कॉस्ट रीइंबर्स करना है, इसलिए जीएसटी एप्लीकेबल हो गया. अब जीएसटी एप्लीकेबल हो गया तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डीजल के ऊपर जीएसटी निकालना है. नहीं, वॉट एवर टोटल अमाउंट पेड टू द हायरिंग कंपनी, ओके, टोटल सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा. तो 7.38. ओके, 7.38. अब समझा. इसको यहां पर लिखना कितना खतरनाक हो जाता था. इसको आप यहां पर लिखते डीजल के कॉस्ट को, तो आप सिर्फ 1.38 के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करते. ओके, इसलिए हायरिंग कंपनी को जो हमने टोटल पे किया उसके ऊपर जीएसटी आएगा. जीएसटी हमारा कॉस्ट क्यों है? बिकॉज हमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है. ओके, 7.38 इंटू 5%, 7.38 इंटू 5%, सो दैट विल बी 0.369. ये भी हमारा कॉस्ट है. यस, ये भी हमारा एक कॉस्ट है. ओके सर, कॉस्ट आ गया एक और. फाइनली वी हैव व्हाट, डेप्रिसिएशन का खर्चा. इसको हम नाम क्या देंगे? आई. ओके, व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? बड़े अमाउंट दिए हुए हैं, 80 करोड़ 40 lakhs. हमको इन लैक्स कन्वर्ट करना है. इन लैक्स कन्वर्ट करना मतलब 5 जीरो हटाना है. सिंपल 8040 लिखेंगे. सो राइट 8040. डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है. डेप्रिसिएशन क्यों कम होएगा? ऑब्वियसली एसेट का बुक वैल्यू कम हुआ रहेगा, तो नए वैल्यू पे चार्ज होगा, तो रिड्यूस वैल्यू होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस. इसीलिए तो बोला जाता है 8040 कितने से कम होने वाला है? 15%. तो इट्स अप टू यू, आइदर यू राइट -15% और यू राइट इंटू 85%. बात तो एक ही है. -15% भी कर सकते हो कैलकुलेटर में, इंटू 85% भी कर सकते हो. एंड दैट इज योर डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग ने नाम दे दिया आई. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द कैलकुलेशन इज डन. अब सिर्फ इसको फॉर्मल वे में क्लोज करेंगे. अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट. कहां पर है मेरा टोटल कॉस्ट? मेरा टोटल कॉस्ट स्टार्ट होता है मटेरियल से, बी से लेके आई तक. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन शो देम कि ने इन सारी चीजों को ऐड कर दिया है. इन सारी चीजों को ऐड कर दिया है. मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, सॉरी ये तो एक ही कैटेगरी का लेबर का कॉस्ट हुआ. टोटल लेबर कॉस्ट उसने नंबरिंग देके रखा है, सी एंड डी एंड ई एंड एफ जी. तो नहीं है वो, मैं यहाँ पर नहीं लेता हूँ. जस्ट अ मिनट, सो दैट आंसर हमको डायरेक्टली मिल जाए. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट, सेफ्टी, डीजल, हायर चार्जेस, जीएसटी नहीं है, डेप्रिसिएशन. दैट इज योर टोटल कॉस्ट. इसका कैलकुलेशन अलग से करना होगा. इसमें कुछ अलग कॉस्ट भी है. मटेरियल्स, लेबर, पावर, सेफ्टी, डीजल यहाँ पर नहीं है, टोटल में यहाँ पर आ गया. जीएसटी की एक्स्ट्रा कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन आ गया. ओके, टोटल कॉस्ट आ गया. टोटल कॉस्ट को आप नाम जे दे सकते हो. एंड अब आपको आएगा प्रॉफिट, जिसको आप बोलोगे ए माइनस जे. ए इज इन द फर्स्ट फिगर, सेल्स है, राइट. एंड ये आपका टोटल कॉस्ट जे में है. 5142 का नेगेटिव फिगर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ लॉस. यहाँ पर सेल्स है ए में और कॉस्ट है जे में. माइनस किया तो आपका लॉस, यहाँ पर भी लॉस आ. So you can, instead of writing profit, it as loss. इसको लॉस बोल सकते
अगर आपने ऊपर की कैलकुलेशन ज्यादा डेसिमल्स में किया रहेगा तो आपका रिजल्टिंग आंसर भी उतने डेसिमल्स में आएगा। हमने 2 डेसिमल तक रेस्ट्रिक्ट किया है तो हमारा फाइनल आंसर भी 2 डेसिमल तक आ रहा है। ओके, सो व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज assumptions क्या क्या है, कैलकुलेशंस क्यों ये कैलकुलेशन किया, कौन से पॉइंट की वजह से ये कैलकुलेशन को चेंजेस करना पड़ा, कौन से कैलकुलेशन कौन से सेंटेंस की वजह से कैलकुलेशन में इम्पैक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल 10% इंक्रीज ऑफ प्राइस इन द रॉ मटेरियल और सेलिंग प्राइस में क्यों हमने इम्पैक्ट नहीं किया, क्यों डब्ल्यूपीआई के बेस पे था, डब्ल्यूपीआई 5% से नहीं बढ़ा, उसलिए चेंज नहीं किया। सो ये सारी चीजें looking at the solution you will not be able to understand, and that's what the objective of this video was, to make you understand how the calculations are done. Hope you understood the video, and RTP May 24 के और भी क्वेश्चंस के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बच्चों के लग रहे हैं that I will be posting. You please keep sharing to students who are doing CA intermediate, okay, and उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो देख के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है और उनको अच्छे से सिंपल जा सके। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।